Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. The next topic is what do you mean by equilibrium of concurrent forces? I have framed the concept in the form of questions. What are concurrent forces? Obtain the conditions for equilibrium of concurrent forces. Statement मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है concurrent forces का, इसको समझते हैं. Let us understand it. Suppose that we have an object. I have an object. This is an object. This object is under the action of this force. इस object पे ये force लग रही है. ये फोर्स लग रही है. अगर ये इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रही है और ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे है, तो देन यू विल से दैट ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, लेकिन अगर सेम टाइम जो है अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सेम टाइम, अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सेम टाइम, then what happen? ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? in which direction the object will move if the force F2 is moving? Reply: this object is under the action of two forces at point O, F1 force and F2. In which direction the object will move? Reply: सर पैरेललोग्राम से लगाएंगे तो फिर बीच good, से जाएगा. very nice. along resultant diagonal. ये बन गया इसका diagonal. डायगोनल के साइड ये मूव करेगा और ये आएगा रिजल्टेंट. आई विल से दैट दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 फोर्स. तो फोर्स F1 प्लस F2. Suppose that at the same time another third force acting on the object along just opposite to the diagonal, just opposite to the, this is a force F3. Then object, what happened here? Suppose that F1 is equal to 2 Newton, F2 is equal to 2 Newton. Then total is equal to 2 Newton plus 2 Newton कितना हो गया? 4 Newton. अगर along F3 force अगर 3 Newton है, if F3 force is 3 Newton, then object will move in which direction? किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट upward. इधर करेगा क्योंकि ये वाली फोर्स ज्यादा है. अगर this force is 4 Newton, then what happen? रेस्ट पे आ The object will stay जाएगा. at rest. Object is at rest. So this is the concurrent forces acting at a same point on the body called concurrent forces. When number of forces acts on a body on the same point and the net unbalanced force is 0. Unbalanced force is 0, the body will continue in the state of rest or uniform motion. देखो अगर ये रेस्ट पे है, अगर बराबर फोर्स लग रही है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. इफ मैं अब यहाँ राइटिंग इफ forces are in equilibrium, object at rest. Object at rest. तो F1 फोर्स मैं डायग्राम से अगर देखूं प्लस F2 फोर्स is equal to F3 force, but direction is opposite. Direction of F3 force is opposite. So अगर इनका सम ये बराबर है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. नाउ F1 प्लस F2 प्लस F3 is equal to 0. Sum of all the forces acting at a point are concurrent forces. If their sum is equal to 0, object is at rest. Object is at rest.
If sum is not equal to 0, then object is in motion. अगर यहाँ पे तो दो ही फोर्सेस हैं, अगर मैं नंबर ऑफ फोर्सेस ले लूं तो उनका सम अगर 0 हो तो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, F1 प्लस F2 प्लस F3 ऑल वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Fn is equal to 0. Moreover, sigma F is equal to 0. Then object is in, then all the forces are in equilibrium. तो मैं क्या बोलूंगा, all forces are in equilibrium. Okay, understand बेटा? रिप्लाई कीजिए. Yes, sir. Okay. The numerical related to the same concept. This is a NCERT exemplar. Three marks. A mass 6 kg. ये लगा हुआ है 6 kg, mass 6 kg. Is suspended by a rope of length 2 meter. ये this is a rigid wall. This is a rope of 2 meter from a ceiling. This is a ceiling. This is a ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal is applied at the midpoint of the rope. अगर ये 2 मीटर का rope है तो 1 meter above and 1 meter down, and this is the midpoint. Midpoint पे force लगी है F. The force is 50 Newton. In the horizontal is applied at the midpoint of the rope. The angle which यहाँ which आएगा, which rope makes with the vertical in equilibrium. ये rope जो है ये हुआ vertical. ये एंगल पूछा गया है, थीटा बताइए. थीटा एंगल कितना है ये पूछा गया आपसे, ये आपको बताना है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. रिप्लाई. इक्विलिब्रियम में है सिस्टम. क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ओके. नाउ लुक हियर. सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी मास ऐसे मास है, मान लो ये 3 kg है और ऐसे हैंग किए आपने, तो इसका वेट जो है मास इंटू ग्रेविटी आएगा. मास इसका 3 और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जल्दी इजी हो जाता है. तो अगर मैं मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये 30, तो फिर मैं यूनिट लिखूंगा न्यूटन. तो ये फोर्स बन गई. दिस इज नॉट ए वेट नाउ, दिस इज ए फोर्स. राइट? ओके, दिस इज फोर्स. मास को वेट में कैसे चेंज करना है. नाउ लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे मिड पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज सपोज दैट O. At the midpoint we have applied a force of 50 Newton along horizontal. Then this point O is under the action of how many forces? A force along the string, ये that is known as tension in the along the string is tension T1. टेंशन T1 इधर लग रहा है. अब ये 60 न्यूटन फोर्स नीचे को लग रही है, तो यहां भी along the string there is a force. Suppose that this is another tension, this is another tension, that is T2. Simple, right? So point O is at equilibrium. Point O at equilibrium. Equilibrium. पॉइंट O इक्विलिब्रियम में है. अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास, आप सारी की सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि O पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही है. रिप्रेजेंट करने के लिए द बेस्ट वे इज दैट आप ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल साइड को ट्रेस कर लें
और हॉरिजॉन्टल के बैक वाली साइड को भी ट्रेस कर लें। If this angle is theta, then what is this angle? Theta. Theta. Along this OA, इधर जो फोर्स लग रही है, टेंशन T1 लग रही है, तो टेंशन को मैं रिजॉल्व करूंगा कंपोनेंट में, रिजॉल्व टेंशन इनटू कंपोनेंट, रिजॉल्व टेंशन T1 इनटू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट आए? अलोंग थीटा साइड द कंपोनेंट इज T1 कोसाइन थीटा, अलोंग नॉन थीटा साइड द कंपोनेंट इज T1 साइन थीटा, राइट। अब मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए। अब डायग्राम से एट O पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, इट मींस this 50 न्यूटन फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू T1 sin थीटा। ये बराबर है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड अपोजिट जो डायरेक्शन, जो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ये T1 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू T2। तो फ्रॉम डायग्राम T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50। बोलो बेटा, ये लाइन समझ में आई? अंडरस्टैंड दिस? सर इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? किसको बेटा? सर ये जो आपने लिखा कि ऑपोजिट फोर्सेस दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, मैं कर देता हूं। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, जब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कंडीशन लग जाती है, दिस फोर्स, दिस 50 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू T1 एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड दिस लेफ्ट राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। ये लिखा मैंने नथिंग, ये मैंने ये लिखा सिर्फ T1 sin थीटा। मैं दो इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 50, और दूसरा मैं ये लिख रहा हूं इधर T1 कोसाइन थीटा, T1 कोसाइन थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू T2। लेकिन T2 नहीं लिखूंगा भी मैं, क्योंकि ये देखो T2 किसके बराबर है? ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। T2 इज इक्वल टू 60, T2 इज इक्वल टू 60, तो T2 की जगह मैं ये 60 कर लूंगा। अंडरस्टैंड नाउ? यस। ओके, डिवाइड कर देंगे बेटा, इनको डिवाइड कर दो। T1 से T1 कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा, साइन दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 60, 5 बाई 6 इज इक्वल टू 0.8। अब tan थीटा की मेरे पास वैल्यू आई 0.8। तो आपको पता है tan 45 डिग्री में कितना होता है आंसर? 1। तो 0.8 लेस है, 0.8 इज लेस देन 1। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू यहां, अभी मुझे इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.8, ये आंसर है। यहां पे मिल जाएंगे आपको मार्क्स। एग्जैक्ट आंसर जो टेबल से मिलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39 डिग्री आंसर। और यही एंगल हमसे पूछा गया है। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपने बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो सर जहाँ इक्विलिब्रियम दिया होगा वहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही होगा, उसको मोशन में नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे आपने डेफिनेशन में यूनिफॉर्म मोशन भी मेंशन किया था। जब जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लगते हैं, देखो न्यूटन लॉ क्या है? न्यूटन लॉ अपने ये पढ़ा था,
न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यूसली रिमेन्स एट रेस्ट, या तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगे, या तो फिर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मोशन में ही रहता है, ऑब्जेक्ट इज इन कंटिन्यूसली इन मोशन, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। वो स्टेटमेंट ऐसे है, आप अपने दिमाग में ये फिट कीजिए। आपने सिर्फ ये रखना याद, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, राइट, इक्विलिब्रियम है तो बैलेंस्ड फोर्सेस है। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस। जब भी ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर होता है तो वो रेस्ट पे होता है। ये बैलेंस्ड फोर्सेस है सारी की सारी। ये अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे होता है, ये रखो अनबैलेंस्ड फोर्सेस, वो न्यूटन लॉ से स्टेटमेंट करके मैच करके दी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस तो मोशन में होता है। ये दो ही लाइनें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है बेटा? यस सर। और कुछ नहीं दिमाग में रखना, ये दो बैलेंस्ड फोर्सेस पे रेस्ट, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, ये F1 ये F2। अगर इन दोनों का सम F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन है, और एक साइड में बैकवर्ड फोर्स लगा दूं F3, अगर ये भी 4 न्यूटन है तो ये बैलेंस्ड होगी, तो ये रेस्ट पे होगा। बैलेंस्ड है ना ये? है बेटा? यस सर। अगर ये 5 न्यूटन कर दूं मैं तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके, देखो आई हैव अनदर न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द टेंशन T1 and T2 in the string. This is a rigid support, this is a wall. एक ही क्वेश्चन की दो डायग्राम्स बनाई गई हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन। यहां पे ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, राइट, इधर ऊपर ये दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ पे 4 kg वेट लगा हुआ है। दिस डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये 4 kg मास लगा हुआ वेट नहीं है तो वेट कितना बन जाएगा इसका? 4 इंटू ग्रेविटी, तो वेट बन जाएगा 4, ग्रेविटी ले लूं 10, तो वेट बन जाएगा 40 न्यूटन। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि T1 और T2 बताइए, तो इसकी डायग्राम ये अलग से बना रखी है। और दिस एंगल इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दिस एंगल इज, ये स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल विद दिस सपोर्ट इज 60 डिग्री, दिस इज गिवन 60 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो मान लेते हैं ये जहां पे ऑल द फोर्सेस आर मीटिंग, these are T1 force act at point A, T2 force act at point A, और T3 इधर नीचे से भी ये स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही है, T3 ये भी एक्ट कर रही है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कंपोनेंट्स बनाओगे T1 के। कंपोनेंट्स बनाने के लिए दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। If this angle is theta, then what is this angle? Theta. Resolve T1 into components. Along this side, T1 cosine theta. Along this side, reply. T1 sin. Good. T1 sin theta. From diagram से एक तो T3 is equal to 40, now this T1 cosine theta
is equal to T2. This force is equal to this force, and upward force T1 sin theta is equal to, अब ये टेंशन इधर भी तो लग रही है, T3. T3 is equal to 40. Right, beta? Understand how to frame the equation? Reply करो. Yes, sir. Now you know that theta is equal to 60 degree. थीटा 60 डिग्री है आपके पास, तो यहां से T1 तो डायरेक्ट निकल जाएगा. T1 is equal to 40 divided by sin theta. It is equal to 40 divided by sin 30 degree. It is equal to 40 divided by sin 30 degree is equal to root sin 60, not 30. Sin 60 degrees. Sin 60 is equal to root 3 by 2. 40 into 2 divided by root 3. What is the value of root 3? 1.732. It is equal to divided by 1732. And answer is approximately, what is answer? It is equal to it is equal to 45.26 Newton. This is the value of T1. What is the value of T2 now? T2. T2 is equal to T1 cosine 60 degree. T1 is 45.26. Cosine 60 degree is equal to 1 by 2. And T2 is equal to 22.63. 22.63. Good. Newton. Take another example. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. I have solved 2 numericals. You will do at least next 5 numericals और करोगे आप. अब ये क्वेश्चन आप करोगे. अपनी कॉपी में लिखिए. Suppose that this is a rigid support. बनाइए मेरे साथ डायग्राम. और ये स्ट्रिंग, ये डाउनवर्ड नीचे वेट लगा है. Mass is given. Right, along this direction of force. देखिए, आप मुझे इसका आंसर बताओगे. ये क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में. So this angle is theta, not given. थीटा आपको निकालना है. Along this side, the force is equal to 200 root 3. Newton. This is a 1 meter. This is a 1 meter. This is a 20 kg mass. और आपसे पूछा है व्हाट इज द एंगल. एंगल निकालिए.
क्वेश्चन है आपका, थीटा कैलकुलेट कीजिए और ग्रेविटी का वैल्यू आपको बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले बेटा रिजॉल्व कीजिए इसको कंपोनेंट में। जब भी ऐसा सिचुएशन हो, आपने यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वेट कितना लग रहा है, रिप्लाई करो, वेट कितना आएगा, बोलिए जल्दी। 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। 20 into 10 ग्रेविटी कितना बन गया है? दिस इज अ टेंशन T1 मान लेते हैं इसको, एंड दिस इज अ टेंशन T2। If this angle is theta, this angle is theta, resolve T1 into components. T1 cosine theta, this is 60 degree. Now tell me the answer, tell me the value of, मुझे वैल्यू बताइए, 60 degree. एंगल बताइए, कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। So 60 degree. बोलो बोलो। Who is the stupid? ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये बस देश का नुकसान कर रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं ऐसे ही। They are enjoying. बेटा डायग्राम से क्या क्या आ जाएगा भाई? एक तो आपको डायग्राम से मिल रहा है T1 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 200 रूट 3। एक तो डायग्राम को आपसे मिल रहा है T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 200। सर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। गुड, वेरी नाइस। दो इक्वेशंस तो आपको डायग्राम से मिल रही है। कट गया कोसाइन, ये साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा कर लो, ये ऐसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन T1 साइन थीटा डिवाइड बाई T1 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 200 रूट 3 कट साइन थीटा बाई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अभी बच्चे ने आंसर बताया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 पर कब होता है? When theta is equal to 30 degree. 30 डिग्री, वेरी नाइस आंसर। एक और क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। 3 minutes are still left. बनाइए डायग्राम साथ में। This is a support. This angle is 30 degree. This angle is 45 degree. This is given in the question. This is a tension T1. This is a tension T2. This is the force, downward force given 200 Newton. This is force given. It means this is mass is 20 kg.
suppose that here this is not given tension. Suppose that I suppose it there's a tension T3, tension T3. आपका क्वेश्चन है find the tension T1 and find the tension T1 and T2. This is your question. चलिए बेटा करिए इसको सॉल्व। अगर मैं इसको अब देखो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। सपोज दैट इज अ पॉइंट, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना है 45, और ये साइड बन गया T2 कोसाइन 45 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या बना T2 साइन 45 डिग्री। ये वाला एंगल थीटा 30 है तो ये वाला एंगल क्या है 30। T1 का ये कंपोनेंट बना T1 cos 30 डिग्री, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट बन गया T1 sin 30 डिग्री। अंडरस्टैंड? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करो। इक्वेशन देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स ये लग रही है T1 sin 30, ऊपर को और भी फोर्स लग रही है, प्लस एडिशन हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। T2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 200। ये क्वेश्चन समझ में आ गया?